Okay. Okay. So function is nothing but a block of statement which executes upon its call. जब उसको हम कॉल करते हैं, in that case the function is going to be execute. So last time we started with the function. The function is nothing but a block of statement which executes upon its call. So whenever we give a call to a particular block of the statements, it is going to be execute. Otherwise, that particular block is not going to be executed. So what we have to do initially, we have to define the prototype that is called as the function prototype. That initially we have to define it. That is nothing but the blueprint of the function which we are going to be execute in the latter part of the program. So initially we have to define that is the function prototype. Next one is we have started with the main, and in the main we have to call the function. और लास्ट में क्या होता है, आफ्टर द मेन वी हैव टू क्रिएट द फंक्शन बॉडी. अब फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या होता है, वी हैव टू राइट द रिटर्न टाइप, ये int या void that is called as a return type, followed by the name of the function. So int is a return type and call is the name of the function. Same you have here. Void is a return type and call one is name of the function. So this is the main. In the main, we have to call the function, that we have to write the name of the function, opening closing round bracket, followed by the semicolon. If the particular function is followed by the semicolon, which means that we are defining the particular function or we are calling to the function. If the particular function, if the name of the function followed by opening closing round and that is followed by the curly braces, which means that it is followed by the body of the function. Body of the function जहाँ होगा, in that case we don't have to use the semicolon after the name of the function. So यहाँ पर void call one opening closing round bracket, we didn't have given this semicolon. So okay, what we have seen in the function is a block of statement which executes upon its call. So it is going to be execute when we are going to be called to the particular block of the statement. By default, in every program we have a one main function that is called as the main opening closing round bracket. This is a function. So by default we always have a function. So we divide the code or the block of the code in the parts. That is, you can divide your code into the separate functions. Separate functions is nothing but the block of the blocks. How we can define the function? The general initially what this is the return type. Okay. So return type. Next one is the name of the function, followed by the parameter list, and here the curly brace and curly brace. This is nothing but the body of the function. Return type means वहाँ से हमको किस टाइप की वैल्यू मिलने वाली है, which is satisfied that will be denoted with the help of the return type. Next one is the function name. अब जनरली अगर हमको वैल्यूज नहीं मिलती है तो वी राइट देयर इज void, और अगर वैल्यू मिलती है तो उस टाइप की वैल्यू वहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं. पैरामीटर्स, जो ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में जो हम वैल्यूज पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पैरामीटर. एंड लास्ट वन इज द फंक्शन बॉडी, जहाँ पर हम एग्जीक्यूटिंग कोड जो होता है उसको वहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं. ओके. सो फंक्शन डिक्लेरेशन देखा था हमने, कॉलिंग टू दी फंक्शन देखा था, किस तरह से कॉल करते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम इस पर. आज देखते हैं वॉइड ये क्या होता है, उसमें हम किस तरह से फंक्शंस को कॉल करते हैं देखते हैं. तो पहले चलते हैं. सो इंक्लूड इंक्लूड लिखा हमने. यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ अ नंबर. एडिशन परफॉर्म करना है, वी आर पासिंग टू टू वैल्यूज. तो स्टार्टिंग में लगा देते हैं void. ध्यान से देखना, एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल इसमें हम कन्वर्ट करेंगे. मेन डाल देते हैं हम. तो इंट a कॉमा बी
यहाँ पर हमने क्या लिखा था, CLR SCR, की फंक्शन को हम कॉल करते हैं एडिशन, एंड गेट CH, और यहाँ पर आने के बाद यह रिटर्न दी फंक्शन नेम एडिशन, और is followed by the body of the function. So int I comma j comma sum. So printf, enter the enter enter two values for addition of a number, and it यहाँ आएगा हमारे पास में %d comma ampersand of I comma ampersand of j. So sum is equals to I plus j, और यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं printf summation equals to %d comma sum. चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 10 और एक 20, तो वैल्यू हमको मिल गया 30। ये हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया जिसमें क्या किया कि वी हैव डिडंट पास एनी टाइप ऑफ द वैल्यू। इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है, जल्दी से बोलो। इसमें क्या करता है, हम मेन में से वैल्यू को पास करते नीचे में, वेन में से जब वैल्यू पास करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं इंट इंट। हम किस टाइप की वैल्यू पास करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पास टू डिफरेंट वैल्यूज। कौन सी कितनी वैल्यूज पास करने वाले हैं, यहाँ से मिलेंगे 2, और किस टाइप की वैल्यूज होगी, दैट विल बी ऑफ द इंटीजर टाइप। अब ये जो ऊपर का पोर्शन लिखा हुआ है हमने मेन में, वहां से इंट यहाँ से लेकर ये सबको हम ऊपर लेके जाएंगे दी मेन। अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं मेन में, क्योंकि मेन से हम वैल्यू पास कर रहे हैं। सो इंट आई कॉमा जे के बाद printf enter numbers, ओके, scanf %d। तो पहले हमने मेन में लिखा था, अब इसको हम सॉरी फंक्शन में लिखा था, इसको वापस लेके आ गए इन दी मेन पार्ट, और इसको हम पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशन आई और जे। यहाँ देखिए इनिशियली क्या किया हुआ है, वॉइड एडिशन इंट कॉमा इंट, इसका मतलब यहाँ पर हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया। ब्लूप्रिंट में क्या किया हमने, इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी टाइप ऑफ द वैल्यू। सो वी आर पासिंग टू वैल्यूज, इसका मतलब ये होता है कि हम मेन में से क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज को पास करेंगे। एक होगी पहली वैल्यू है आई और जे, दोनों का टाइप क्या है यहाँ देखिए ऊपर में, इस टाइप इज द इंटीजर, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है इंट इंट। तो सेम हमको यहाँ पर भी एडिशन जो फंक्शन बनाया हुआ हमने, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा इंट कॉमा इंट। अब इसको हम कर देते हैं इंट ए, और इसको हम कर देते हैं इंट बी। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो प्रिंट डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही वहाँ पर स्कैनफ लिखने की भी हमको ज़रूरत होगी। we are getting these two values at the top,
तो int sum, तो here we'll write int और यहाँ पे लिखा हमने sum। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं a और यहाँ पर आएगा b। एडिशन इंट a और b, तो ये a में क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है ये पहले वेरिएबल में जाएगी, ये दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाएगी। तो हम लेके चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, दिस इज नथिंग बट ए फंक्शन प्रोटोटाइप। ये वाला प्रोटोटाइप में हमने क्या डिफाइन किया है कि वी आर गोइंग टू पास टू डिफरेंट वैल्यू, one is the integer and second is also the integer value, so we are passing the two values, one both are of the integer। उसके बाद एडिशन यहाँ पर है, ये चेक करेगा कि ये एडिशन और एडिशन सेम है क्या। यहाँ पर जो i है और ये j है, दोनों का टाइप क्या है, दोनों का टाइप सेम इंटीजर और यहाँ पर हमने इंटीजर दिया तो मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा नीचे में, ये चेक करेगा कि यहाँ पर void लिखा हुआ है, ये void आ रहा है तो ये बराबर है। एडिशन एडिशन इट्स ओके, ये चेक करता है ये इंटीजर लिखा हुआ है और यहाँ पर इंटीजर है तो बराबर है, ये इंटीजर है और ये इंटीजर है तो बराबर है। ठीक, तो पैटर्न तो हमारे पास में सेम आ गए, मतलब कि उसका रिटर्न टाइप या वैल्यू जो भी है वो। अब क्या होगा, ये फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है दैट विल मूव टू दी फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू और फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, सॉरी ये होते हैं पैरामीटर्स। ठीक, और जो हम सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर। जो हम सेंड करते हैं इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं और जो रिसीव करते हैं इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर दी आर्गुमेंट्स विच वी रिसीव, और जो हम सेंड करते हैं इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब क्या होगा, ये फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू इस फर्स्ट वेरिएबल में आएगी, सेकंड की वैल्यू सेकंड में आएगी, थर्ड की वैल्यू थर्ड में आएगी, फोर्थ की वैल्यू फोर्थ में आएगी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर सपोज मैंने सिर्फ आई दिया और जे नहीं दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज हियर वी आर पासिंग अ सिंगल पैरामीटर एंड हियर वी आर रिसीविंग द टू पैरामीटर, तो एक और दो में फर्क है हमारे पास में, तो एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए बहुत बारीक बारीक चीजें बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए ये आई लिखा आपने और ये जे लिखा, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल दिया। अब ये आई और जे ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, इसका स्कोप कहाँ तक है, यहाँ तक। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर अगर मैंने इंट आई और इंट जे लिखा तो एग्जीक्यूट होगा क्या। यस, 100% एग्जीक्यूट होगा। क्यों 100% एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये आई और जे का स्कोप जो है वो यहाँ तक है और हम कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वी आर एग्जीक्यूटिंग आउटसाइड द मेन, बराबर। आउटसाइड द मेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका स्कोप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर आई लिखा और यहाँ पर लिखा, चलिए अब देखो दूसरी चीज ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा इंट इंट, यहाँ पर भी आप इंट ए और इंट बी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है, मतलब वेरिएबल का नाम जो होता है दैट इज दी ऑप्शनल, नहीं लिखा तो भी चलता है। कहाँ पर, पैरामीटर डिक्लेरेशन में, ये इसको फंक्शन प्रोटोटाइप में कंपलसरी नहीं होता है। लिखा चलेगा, नहीं लिखा इट डजंट मेक इन डिफरेंस। इसको क्या करना है, जस्ट इट हैज टू अलोकेट द मेमोरी, कितनी, ये 2 बाइट्स की मेमोरी को यहाँ पर अलॉट करना है, बस ये काम होता है। ये इंटीजर एक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया हमारे पास में और ये एक ब्लॉक हो गया यहाँ पर असाइन। सो यहाँ पर आप आई जे भी लिख सकते हो या दूसरे कोई लिखा तो भी चलेगा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने ए और बी को डिफाइन नहीं किया, वी हैड ऑलरेडी डिफाइन इंट ए एंड इंट बी हियर, सो नो नीड टू राइट हियर। सो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इट विल परफॉर्म द कैलकुलेशन और रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा।
चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल, एरर आ गया, क्या आ गया, पर में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो कंपाइल और रन, 50 और 230, 20, रिजल्ट आ गया 70। सो 70 इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए यहाँ पर डाउट होगा तब क्वेश्चन कीजिए, तब तक आगे लिखा, इसको यहाँ लिखा इंट ए और यहाँ लिखा हमने इंट बी। तो यहाँ पर इंट ए हो गया और यहाँ पर हमारे पास में इंट ए बी। इसको हम फिर से कंपाइल करते हैं। देखो नहीं लिखा, लिखा तो भी हमारा प्रोग्राम वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। चलो, डाउट है क्या? जल्दी बताओ, फिर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। गुड। बोलिए। क्या? हाँ, नहीं कॉल करते, और कौन कॉल करता है उसे? बाय डिफॉल्ट जो, हाँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है अब देखिए क्या होता है, ये हमारा प्रोग्राम है, बराबर। अब ये जो आपने सवाल किया ना, ये हर एक प्रोग्रामिंग में यूज होता है कि हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहीं तो भी स्टार्ट करना है, बराबर। कंपाइलर को एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जैसे हमारे पास में एडिशन एक फंक्शन आ गया, मेन एक फंक्शन आ गया। तो आपका सवाल ये है, एग्जैक्टली 100% करेक्ट क्वेश्चन है कि मेन से क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, बराबर। क्या होता है जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब जब हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, हमेशा एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द मेन फंक्शन, कि आप मेन में जो भी लिखोगे वहीं से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ये कंपाइलर को पहले से बताया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे प्रोग्राम का, अब ये सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, हर एक में ऐसे होता है कि मेन जो होता है वहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली सर्च करता है भैया मेन कहाँ पर है। आप एक काम करना, जब प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम बनाओगे, ये मेन को वॉइड के नीचे लिखना। अब आपका सवाल ऐसा आ सकता है कि सर मेन ऊपर लिखा है इसलिए इसने इसको पहले पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो सर्च करता है कि स्टार्टिंग मेन कहाँ से हो रहा है, मेन कहाँ पर है। मेन इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एवरी प्रोग्राम। तो वो सर्च करता है कि मेन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक। तो वो जाकर चेक करेगा कि कहाँ पर है मेन, और वहां से प्रोग्राम को का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सो ठीक है अभी। ठीक है। और जैसे जावा में आप जाओगे तो जावा में भी यही होता है, जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो जहाँ पर हमारा मेन होता है, मेन के नाम से ही, मतलब कि जैसे हम एक दो क्लास बनाया हुआ है और जिसके अंदर मेन है हमारे पास में, उसी से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ताकि कंपाइलर को फिर हम बताते कि यहाँ से आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी। फर्स्ट वन इज दी ए इज इक्वल्स टू 10 और बी इज इक्वल्स टू 20। ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स 20। ये इसको पास किया हमने फंक्शन के अंदर में। ये आ गया मेन और ये आ गया हमारे पास में फंक्शन। ठीक। ए और बी को यहाँ पर पास किया हमने वैल्यू। यहाँ पर जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगा 10 + 20 रिजल्ट आएगा 30। ये रिजल्ट को हम यहाँ पर भेज रहे हैं अभी। अभी तक क्या किया हमने कि जो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू थी इसको यहाँ पर लेके गए हमने, एंड वी डिस्प्ले द वैल्यू इन द फंक्शन ओनली। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा इसको लेके जा रहे हैं हम इन दी मेन। ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ से वैल्यू को पास कर रहे थे, हम मेन में है, तो हमने लिखा था एडिशन, और वहां से मिला ए और बी। तो क्या होगा जब ये 30 मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि जब ये एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कि जब हम वॉइड पर जाते हैं, ये यहाँ पर रिटर्न,
यहाँ पर लास्ट में रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न मतलब क्या होता है, गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉलिंग स्टेटमेंट मतलब हम हमको किसने बुलाया था, ये एडिशन में, ये एडिशन पर वापस जाता है। और जब हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो उसको क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब रिटर्न होगा मतलब कि सपोज इसका वैल्यू कितनी, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 30। ये 30 कहाँ पर आएगा, ये इसमें आएगा। इसको हमको कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा। सो मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमको कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। सॉरी, इसका रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा। लिखना थोड़ा सा। देखिए, ऊपर प्लेन खाली है, हमने फिर से इसमें ध्यान दीजिए भी। अब क्या करना है मुझे, वैल्यू को लेके जाना है कहाँ से, ये मेन है हमारे पास में, और ये हमारे पास में फंक्शन है। क्या करेंगे हम, दो वैल्यूज को पास करेंगे। दो वैल्यूज को हम पास करेंगे, ए और बी। ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द मेन ब्लॉक एंड दिस इज अ फंक्शन ब्लॉक। यहाँ से हम दो वैल्यूज को पास कर रहे हैं। हियर वी विल परफॉर्म दिस सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। कहाँ पर कर रहे हैं हम, इन दी फंक्शन। सो ये लिखा हुआ है इंट आई जे, ये आई जे हो गया। उसके बाद सम, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये परफॉर्म किया। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट परफॉर्म कर दिया। सपोज वी आर पासिंग 10 और 20, ये चलेगा यहाँ पर एंड वी गेट द रिजल्ट एज 30। ये रिजल्ट को हम यहाँ से वापस भेज रहे हैं मेन में। जब वैल्यू को हम भेजते हैं, तब वहाँ पर हम यूज करते हैं रिटर्न। क्या यूज करते हैं, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। जिसने बुलाया था वहां पर जाओ, जहां से आपको कॉल किया था वहां पर आपको वापस जाना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट ए रिटर्न ब्लॉक। रिटर्न में ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट होता है फॉलोड बाय द सेमीकोलन। अब रिटर्न मतलब कि आपको क्या लेके जाना है यहाँ पर। हमने क्या परफॉर्म किया, कैलकुलेशन परफॉर्म किया, जिसका रिजल्ट है 30, यहाँ लेके जाना है। मतलब कि ये वेरिएबल में जो वैल्यू है ये हमको मेन में लेके जाना है। दैट इज हमने यहाँ लिखा सम, तो रिटर्न सम। ये रिटर्न क्या होता है, अगर रिटर्न आपने सेकंड स्टेटमेंट में लिख दिया, पहले स्टेटमेंट में लिख दिया, तो ये वापस चले जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो रिटर्न कहाँ होता है, हमेशा लास्ट में होता है फंक्शन के। फंक्शन रिटर्न का मतलब होता है कि रिटर्न, रिटर्न मतलब कि आपको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है वो। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है सम, सम का टाइप क्या है, इंटीजर।
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट, और यहाँ पर भी हमने लिखा इंट। दिस इज नथिंग बट ए रिटर्न टाइप। हमने यहाँ पर देखिए लिखा था रिटर्न टाइप, मतलब कि आपको किस टाइप की वैल्यू मिलने वाली है। अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न अंडरस्कोर टाइप इज अ डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग द वैल्यू, इन दिस केस द रिटर्न टाइप इज द वॉइड। और जब वैल्यू रिटर्न होती है उस केस में हम उसको कहते हैं, जो भी रिटर्न टाइप होगा वो स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम सम 30 रिटर्न करने वाले हैं, इसका मतलब है इसका टाइप है इंटीजर। सो ये सम हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा इंटीजर, और सेम हमने यहाँ पर लिखा भी इंटीजर। वॉइड इसके पहले लिखा था क्योंकि हमको यहाँ पर रिटर्न का हम वहाँ पर यूज नहीं कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दी वैल्यू, वी आर रिटर्निंग द वैल्यू टू द मेन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने मेन इंट। इंट से ये वैल्यू यहाँ, अब देखो अब यहाँ से वैल्यू कितनी जा रही है 30। अब इसके पहले हमने लिखा था ये ब्लॉक एड इंट, सॉरी एड आई कॉमा जे। अब ये जब रिटर्न यहाँ से वापस जाएगा तो ये एड एडिशन आई कॉमा जे, ये वैल्यू यहाँ से देगा 30। अब 30 देगा तो इसको कहीं तो भी पकड़ना पड़ेगा, यस पकड़ना पड़ेगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। उसी इसका आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ये इंटीजर और ये हो गया सम, एक टाइप की। और इसमें क्या किया हमने लिखा सम इज इक्वल्स टू एडिशन आई कॉमा जे। मतलब ये जब यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पर तो ये क्या लेके जाएगा 30, और ये 30 को फिर हम स्टोर करेंगे इन दी वेरिएबल सम। तो ये सम में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमने डिफाइन किया, ये सम क्या करेगा फिर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा वैल्यू एज 30। ये 30 कहाँ से आया, फ्रॉम द एडिशन आई कॉमा जे। और ये वैल्यू कहाँ से आई हमारे पास में, फ्रॉम दिस रिटर्न सम। ये वैल्यू यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ पर ट्रांसफर हुई। प्रोग्राम में चलते हैं। सो ये इंट और ये इंट। अब डाउट हो तो क्वेश्चन पूछे जल्दी से, जल्दी बोलिए। जल्दी। हम फंक्शन में दो टाइप से वैल्यू पास करते हैं। फंक्शन में हम दो टाइप से वैल्यू पास करते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू को हम पास करते हैं। ये इसको, अब एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं मतलब कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रोग्राम रख लिया हमने। तो ये ब्लॉक है हमारे पास में मेन वाला, और ये हो गया हमारे पास में फंक्शन। तो मेन, और इसको हमने कर दिया सम। क्या सबको क्लियरली? ओके। सो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंट आई कॉमा जे। इसका मतलब है कि ये एक ब्लॉक असाइन हो गया आई के लिए और ये असाइन हो गया फॉर द जे। दिस इज आई एंड दिस इज द जे। ये दो ब्लॉक्स हमने यहाँ पर असाइन कर दिए हैं। इसमें हमने डाल दिया 10, और यहाँ से पास किया हमने 20। मतलब सम में जा रहे हैं हम, सॉरी एडिशन है यहाँ पर। तो एडिशन इंट ए कॉमा इंट बी। क्या होगा यहाँ पर, दो ब्लॉक्स असाइन हो जाएंगे, ये आ गए। इसका नामकरण कर दिया ए, इसका नाम सॉरी, और इसका नाम दे दिया हमने बी। जब यहाँ से हम एडिशन फंक्शन ले रहे हैं और इसमें हम पास कर रहे हैं आई कॉमा जी।
ये आई कॉमा जे में क्या होगा, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी ए में, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पर आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू जे। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर एज इट इज होगी, इसकी हम यहाँ पर क्या सेंड करते हैं, वी सेंड अ कॉपी यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू में। हमारे जो फंक्शन होता है इसमें दो टाइप की वैल्यूज को पास होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन। वापस आओ, एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर है, ये है। एक्चुअल वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं फंक्शन में। ये क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर्मल मतलब कि कुछ समय के लिए। तो हम कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, वी सेंड अ कॉपी फ्रॉम द मेन टू द फंक्शन। मेन से फंक्शन में ही जाएगा हमेशा, बिकॉज वी आर पासिंग द वैल्यू फ्रॉम द मेन। फंक्शन से वैल्यू को यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं हम। जब फंक्शन से हम मेन में करेंगे, सो दे आर ऑल्सो सेम। एक्चुअल वैल्यू को हम वहाँ पर रेफरेंस सेंड करेंगे, रेफरेंस कहते हैं उसको। रेफरेंस नहीं होगा, सॉरी सॉरी, एक्चुअल वैल्यू की कॉपी सेंड करेंगे। मतलब कि सपोज यहाँ पर हमने कर लिया a इज इक्वल्स टू 100 और यहाँ पर कर लिया हमने b इज इक्वल्स टू 200। तो ओरिजिनल जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पर आप कुछ भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हो तो भी। जैसे यहाँ पर हमने किया a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 200, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं जाता है, दैट इज इन केस ऑफ द कॉल बाय वैल्यू। क्लियर, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू का इम्पैक्ट चेंज नहीं होता है। द मेथड दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब कहाँ से आ रहा है, मेन से आ रहा है, ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। इंट ए बी को यहाँ से पास कर रहे हैं हम इन द एडिशन फंक्शन में। इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव द नो इफेक्ट टू द आर्गुमेंट, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी वहाँ पर चेंजेस का इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 20 दिया हुआ है, तो ये 10 और 20 ही रहेगा इफ वी आर चेंजिंग दिस टू वैल्यूज। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यस वी हैव वन ऑप्शन जिसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस में क्या होता है, इसका हम एड्रेस सेंड करते हैं। क्या करते हैं, एड्रेस सेंड करते हैं। हाँ, और एड्रेस किसका हम अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या सेंड करते हैं, एड्रेस। एड्रेस किसका से कहाँ से सेंड करते हैं, फ्रॉम द मेन ब्लॉक। एड्रेस सेंड करते हैं, वी आर नॉट सेंडिंग द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू की हम कॉपी सेंड नहीं करते, हम सिर्फ रेफरेंस सेंड करते हैं। अब रेफरेंस जब सेंड होगा तो यहाँ पर जब जब चेंजेस होंगे यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, और यहाँ पर जो हम चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसका वहाँ पर एड्रेस यूज कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस। So when we use the reference, in that case we change the original value of the passing parameters। 10 20 है, इसको हम चेंज करेंगे। पहले हम इसको चेंज कर, पहले एक बार इसको यहाँ पर आते हैं। अब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं एज इसमें डाउट है आप लोगों को कुछ, ये वैल्यू जो रिटर्न हुई है अभी तक, तो मैं चेंज करता हूँ एज अ स्वैपिंग का प्रोग्राम में चेंज करता हूँ। तो वाइड, डाउट हो तब तक आप पूछिए। int this is function prototype, int I comma j scalar, enter two numbers for swapping। स्वैपिंग का पता है आप लोग को, स्वैपिंग का इसके पहले हमने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। और स्वैप आई जे,
printf original values from main before swapping के पहले इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है तो वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, पहली वैल्यू, और ये हो गई दूसरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को हमने स्टोर किया आई में, दूसरी की वैल्यू को डाल दिया हमने जे में, इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक, ये स्वैपिंग फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर हम स्वैपिंग जिसमें कुछ फर्क आता है कि इसको चेक करते हैं, आफ्टर स्वैपिंग फ्रॉम मेन। आफ्टर स्वैपिंग क्योंकि वहाँ पर हमने स्वैप फंक्शन के बाद इसको यूज कर रहे हैं, तो %d एंड %d, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, स्वैपिंग इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो सेमीकोलन आई कॉमा जे। नीचे आते हैं, यहाँ पर फंक्शन का नाम हमने स्वैप दिया हुआ है, तो वॉइड स्वैप इंट ए बी, और इसको जब स्वैपिंग करना होता है थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं हम टेम्प सेमीकोलन, int इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, और बी इज इक्वल्स टू एम। यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हम प्रिंट एफ, स्वैपिंग का प्रोग्राम इसके पहले किया हुआ है हमने, तो आफ्टर स्वैपिंग फ्रॉम स्वैप फंक्शन, आफ्टर स्वैपिंग डाल देते हैं %d एंड %d। यहाँ पहली वैल्यू किस में है हमारे पास में ए, दूसरी वैल्यू हमारे पास में है बी, फैशन ऑफ फैशन। तो वैल्यूज कहाँ कहाँ मिलने वाली है हमको, हम इसको चेक करने के लगाया हुआ है हमने। तो पहले इंटर टू नंबर फॉर स्वैपिंग, दो वैल्यूज को हम डिस्प्ले करेंगे, सॉरी एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू इसको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद स्वैपिंग मतलब कि नीचे आएगा यहाँ पर इंट ए बी, यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होने के बाद जो भी आएगा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और ये मेन में हमने मतलब ये चेक करना है मुझे कि स्वैप होने के बाद ओरिजिनल जो वैल्यूज थी, ओरिजिनल वैल्यू सपोज 1020 दी, तो ओरिजिनल में जो मेन में जो वैल्यू है वो चेंज होती है या नहीं, चेक करना है मुझे। अच्छा, एरर आ गया, क्या गड़बड़ हो गई? स्वैप की स्पेलिंग बराबर है हर एक जगह पर, स्वैप, हाँ, पर एक बचा हुआ है। क्या गड़बड़ की है अपन, यहाँ पर भी कॉमा बचा है। चलो, तो 20 और दूसरी वैल्यू डाल दी 30। अब देखो, पहला देखो, ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम द मेन बिफोर स्वैपिंग इज 20 एंड 30, तो हमने 20 और 30 पास किया, बराबर है। आफ्टर स्वैपिंग मतलब कि ये आ गया स्वैप फंक्शन में, स्वैप फंक्शन में डिस्प्ले करने के बाद इसने 30 और 20 दे दिया। लेकिन मेन में जाने के बाद क्या किया, उसने ओरिजिनल वैल्यू क्या है चेक किया, तो ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो चेंज नहीं हुई है। मतलब बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग इन द मेन वैल्यूज इज सेम। बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज क्या है हमारे पास में, वैल्यूज क्या है हमारे पास में, सेम। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, क्या करते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू, तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से गई हमारी, ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम द मेन जो होती है चेंज नहीं होती है।
हम क्या करते हैं इसमें एक सेंड करते हैं कॉपी। कॉपी कहाँ सेंड होती है? कॉपी विल सेंड टू दी फंक्शन, फंक्शन में एक कॉपी सेंड होती है उसकी। ठीक, इसमें डाउट? इसका दूसरा दूसरा पार्ट है, वो भी ले लेते हैं हम। दूसरा पार्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, उसका एड्रेस सेंड करते हैं। एड्रेस सेंड करने से क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज होते जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमने वैल्यूज ली थी बस वही पास करते हैं डायरेक्टली। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे फंक्शन में वैल्यूज चेंज होती जाएगी, ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज को चेंज होती जाएगी। इसमें थोड़ा सा हमको चेंज होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो आते हैं, तो जल्दी किसने ज्वाइन किया अभी? यहाँ पर पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। तो कर देते हैं ये, तो कर देते हैं पॉइंटर। पॉइंटर हम नेक्स्ट इसमें लेंगे। पॉइंटर इसको यहाँ पर स्पेस, और यहाँ से पास करेंगे हम एड्रेस। यहाँ पर गया एड्रेस, गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पॉइंटर, पॉइंटर। यहाँ पर ए है, वहाँ पर पॉइंटर लगा दो। ये पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट्स टू दी वैल्यू। तो वैल्यू जो हमारी वहाँ पर जाएगा, आ गया, ये ले लिया पॉइंटर हमने। एक वैल्यू 100 और दूसरी वैल्यू 300। फाइल, पहली वैल्यू 100, दूसरी वैल्यू 500। तो मेन में देखिए, हमने जब स्वैपिंग किया, स्वैपिंग परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यूज हो रही है वो चेंज होती जाती है। अब कैसे होती है दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या किया हमने, एड्रेस, इसके पीछे इसको बाद में ध्यान दो, पहले यहाँ पर देखो। यहाँ से क्या पास किया हमने, एड्रेस। अब एड्रेस मतलब कैसे होता है कि ये जो ब्लॉक्स हमारे पास में, दो ब्लॉक्स, ये कहाँ पर है, दीज आर अंडर द मेन। मेन में ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, और ये हमारे पास में फंक्शन ब्लॉक। तो इसमें जैसे ये दो वेरिएबल्स हमारे पास में है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं, इसका हम रेफरेंस सेंड करते हैं। रेफरेंस मतलब कि यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे, वहाँ पर ये 1 में और 2 में जो भी चेंजेस होंगे, सेम चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट टू दिस ब्लॉक। क्योंकि हमने इसमें क्या सेंड किया, वी सेंड दी एड्रेस। और एड्रेस को अगर एक्सेस करना होता है तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज दिस पॉइंटर। हमने यहाँ से एड्रेस सेंड कर दिया, ये वाला एड्रेस, बराबर। सपोज मैंने कहा कि आपको सदर में जाना पड़ेगा, और सदर में वहाँ पर मोदी नंबर 3 में आपको वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर जाना है। तो आप क्या करोगे, सदर में जाने के बाद आप ढूंढोगे कि मोदी नंबर 3 कहाँ पर है। मोदी नंबर 3 के बाद वहाँ पर आप देखोगे कि मोदी नंबर 3 इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। और हमको, मैंने पहले आपको क्या बताया, आपको बताया एड्रेस। और एड्रेस को ढूंढना है तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज दिस पॉइंटर। तो यहाँ से हमने क्या पास किया, वी पास टू द एड्रेस, ये पास किया एड्रेस। और इसको हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। ये हो गया हमारे पास में पॉइंटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर जब सेंड किए हमने, तो यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर ए। और ये हो गया हमारे पास में पॉइंटर बी। सबको आवाज वैसे प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आ जाएगा अभी। तो
यहाँ पर पॉइंटर ए पॉइंटर बी लिया, सो हियर वी हैव टू यूज दिस पॉइंटर बी। वैसे ही हमने ऊपर में यहाँ डिफाइन किया हुआ है void swap int पॉइंटर ए और पॉइंटर बी। ये पॉइंटर ए और ये पॉइंटर यहाँ पर मैच करेगा, ये पॉइंटर बी यहाँ पर मैच करेगा। ये जो हमने ऊपर में लिखा हुआ है ये दोनों मैच होने चाहिए हमेशा। इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया। ठीक, तो ये प्रोग्राम को आज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए आप। इसको नेक्स्ट टाइम फिर से मैं इसको रिपीट कराता हूँ मैं। ठीक है, मंडे को मिलते हैं हम। मंडे को भी हम 12 बजे मिलते हैं। अगर पहले फ्री हो तो वैसे आप लोग मैसेज डालिए, फिर हम उसको वैसे अकॉर्डिंगली मिलते हैं।